I पहली गल है
the balcony. स्वे करो क्वेश्चंस. Yes, please. So answer is first question. I waited for dash hours. Answer is many hours, right? Because plural form many. Next, she was RA, not she was. It should be she had. She had won dash awards. Many because plural, so many. How dash do you need? How much do you need? Yes, how much do you need? Next, there aren't dash houses.
अरे हाउसेज इज प्लूरल तो मच किमें आऊगा, मैनी आऊगा. यस देयर राइट. नेक्स्ट yes she has got many friends. Next you didn't eat much breakfast. She can speak many languages. I don't know much about computers. समझ आया हम? Yeah. Breakfast, this is much. Languages, many. Then about computer, much. I believe in AC, 80C question. Yes, 8 question is C. Wait. Keep. Now, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ IBPS PO ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਹੁਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ? Many a man are planning to join this job. So IBPS PO 2023 2023 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੀ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਗਾ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ. ਸੋ ਕਿਸ 'ਚ ਗਲਤੀ ਸੀ? ਯੈਸ, ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਜ਼, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੀ ਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन ਐਂਡ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਵਰਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਦੈਟਸ ਆਲ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਸ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਟੂ ਅਮਾਸ, ਰਾਈਟ, ਟੂ ਗੈਦਰ, ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਦਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ. ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਬੇਸਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. ਨਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੀ ਅ ਐਂਡ ਮਚ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਨਾਓ ਵਨ ਮੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1 ਜੋ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1 ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਡਾਊਟ ਲੂੰਗਾ 1 by 1. ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਹੈ ਮੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਿੰਗੂਲਰ ਜਾਂ ਪਲੂਰਲ? ਮੋਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਿ ਮੋਰ ज़्यादा, मोर मतलब क्या होता है ज़्यादा. सो सिंगुलर या प्लूरल? ज़्यादा. क्या हो गया? प्लूरल. वेल डन. तो मोर तो बाद की आंदा है प्लूरल काउंटेबल नाउन. प्लूरल नाउन काउंटेबल ही होंगे एंड प्लूरल वर्ब, एंड प्लूरल ही वर्ब आऊगा. फॉर एग्जाम्पल आई से मोर बुक्स आर रिक्वायर्ड. होर किताबां चाहिदियां हन. सो मोर तो बात किया है बुक्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल वर्ब. लेकिन मोर सिर्फ प्लूरल ही नहीं होंगे, सिंगुलर भी होंगे. अगर मोर तो बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दिता होवे तो मोर अपना बन जाता सिंगुलर, एंड उस केस विच आपां सिंगुलर ही आपां वर्ब यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मोर मनी. मनी की होंगे है अनकाउंटेबल नाउन. करंसी जो होंगी है दैट्स काउंटेबल, राइट. रुपी, डॉलर वो काउंटेबल है. रुपीज़, डॉलर्स वो करंसीज होंगे. नेम्स ऑफ करंसीज जो है वो काउंटेबल है, लेकिन मनी अपने आप दे विच वर्ड जिहड़ा है अनकाउंटेबल है. सो मोर मनी इज़ नीडड. सो मैं मोर यूज़ किया है एंड सिंगुलर वर्ब लिखूंगा मैं. नाउ सो इस केस विच जिवें कि मैं तुहानूं हुणे 2-3 मिनट पहला क्वेश्चन पूछिया भी वट इज़ मोर, इज़ इट सिंगुलर और या प्लूरल. तुहाडा आंसर होना चाहिए हुण नैक्सट टाइम भी सर डिपेंड करता भी मोर दे नाल शब्द किहड़ा लग्या. मोर तो बाद अगर काउंटेबल आउना तो प्लूरल आऊगा, तो उहले केस विच मोर प्लूरल बनता है.
ਮੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਮੇਰਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਰ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪਲੂਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੇਸ ਸਿਮਿਲਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ all ਰਾਈਟ, all ਹੋ ਗਿਆ, some ਹੋ ਗਿਆ, a lot of ਹੋ ਗਿਆ, lots of ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਲੂਰਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾਲ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ ਐਂਡ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਵਰਬ ਲਿਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, 올 ਦੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन, ਪਲੂਰਲ ਕਾਊਂਟੇਬਲ नाउन मैं आर लिखूंगा, आर स्टडिंग, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। नेक्स्ट देखो अ लॉट ऑफ वाटर इज सेफ, बहुत सारा पानी जिहड़ा है वो सेफ है। हुण इत्थे अ लॉट ऑफ तो बाद में लिखा अनकाउंटेबल नाउन, वाटर मैं सिंगुलर वर्ब लिखा, इत्थे अ लॉट ऑफ तो बाद में लिखा है प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल वर्ब लिखा। सो मोर होवे, ऑल होवे, सम होवे, अ लॉट ऑफ होवे, लॉट्स ऑफ होवे, ये सारे सिंगुलर प्लूरल दोनों ही हो सकते हैं, डिपेंड करता है इन्हां तो बाद इन्हां दे नाल नाउन किहड़ा लग्या है। समझ आया? यस और नो? हुण 3 इडियट्स मूवी सारे ने देखी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ all is well, अरे ऑल तो प्लूरल, ऑल मतलब तो सारे होंगे, वो इस क्यों लगा रहा है? अमेरिका नूं इंग्लिश ग्रामर घट आती है। ब्रेकिंग न्यूज़ राइट, ऑफकोर्स नहीं, ये केस नहीं है बिकॉज उत्थे उन्हें ऑल किस वास्ते यूज़ किया है, उन्हें यूज़ किया है माहौल वास्ते भी। डरन की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, माहौल ठीक है। माहौल इज़ अनकाउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होंगे, इसलिए वो लिखा ऑल इज़ वैल। अगर मैं पूछना है हाँ जी घर सब किवें है, मान लो मैं तुहानूं पुछी है ना घर दे भी सारे जी किवें है, घरे किवें है सारे ने, की कहोगे तुसीं? सर ऑल आर वैल, की कहोगे? ऑल आर वैल। ऑल मतलब मैं किहदे वास्ते गल करी ना, लोग घर दे अपने जो मैंबरस हैगे है उन्हां वास्ते गल करी जाना है। राइट, मैं पुछी जाना है हुण तुहाडी स्टडी चंगी चली जांदी है? हुण स्टडी अनकाउंटेबल नाउन है, पढ़ाई जिहड़ी है अनकाउंटेबल नाउन है, वो 1 या 2 नहीं हुई, मैं 1.5 वधिया चली जाती जी, पौना हो गया जी। नंबर च नहीं आप दस सकते पढ़ाई नूं, उहले केस वास्ते मैं अगर तुहानूं पुछां क्वेश्चन, हाँ जी पढ़ाई वधिया चली जांदा, हाँ सर चढ़दी कला च, ऑल इज़ वैल, सब वधिया सर। हुण इत्थे ऑल दे नाल मैं इज़ लाया बिकॉज इत्थे मैं अनकाउंटेबल नाउन दे लई वर्ड यूज़ किया ऑल, इत्थे मैं प्लूरल काउंटेबल नाउन दे लई वर्ड यूज़ किया ऑल। समझ आ रहा है चीज़ां आपां की डिस्कस कर रहे हैं, कित्थे कहानी जा रही है? थोड़ा बहुत राइट। तो अज आपां डिटर्मिनर्स दे बारे इत्थों तक ही डिस्कस करांगे। कल आपां डिस्कस करांगे जो बहुत या मे बी सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट है डिटर्मिनर्स का, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल, द लिटल, किवें यूज़ करना, की फ़र्क है, की गलबात है, पहला डिस्कस करूँगा मैं विद एग्जाम्पल्स, पूछूंगा एक एक यार नूं पूछूंगा भी समझ आया, समझ आया। जो तुम कहोगे हाँ जी समझ आया, मैं कहूँगा ठीक है, क्लास टेस्ट से आप पहुँचते हैं, फिर मैं लूँगा क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट बहुत जरूरी है ना यार, जो आप कर रहे हैं कितना कि समझ आ रहा है पता भी लगे, राइट। सो इस वे नाल आपां कल दी क्लास से डिटर्मिनर्स नूं अगे डिस्कस करांगे। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक विच वी डिस्कस्ड यस्टरडे। आई मीन किहड़ा टॉपिक है वो? बुक लेके आए हो सारे ने? कोई गल नहीं अगर नहीं भी लेके आए, राइट। मैं पीपीटी बना ली सी क्वेश्चन सारे। नाउ हुण मैं 20 क्वेश्चन जिहड़े हैगे प्रोनाउन दे एक्सरसाइज 1 दे तुहाडे नाल डिस्कस करना है एंड देखते हैं भी तुहानूं की प्रॉब्लम आई, तो सेंटेंस है कि
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਐਸਐਸਸੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਰਆਰਬੀ 'ਚ ਆਇਆ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਆਰਮੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਾਓ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਟ ਗਿਵਸ ਮੀ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੇਜਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं देखूंगा मेरा सब्जेक्ट किया गया इट, वर्ब मेरा क्या गिव्स, ओके फाइन। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू नॉमिनेट अ मैन हु ऑल ऑफ अस नो। दूसरा मेरा वर्ब किया गया नो, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ all, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਬੀ ਦ ਬੈਸਟ ਫੀਚਰ ਫॉर द ਜੌਬ। ਨਾਓ ਇਹਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਰਬ ਹੈ, ਇਹਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਰਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਵ, ਗਿਵ ਗੇਵ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਟ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ नो, नो ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ all। ਸੋ ਦੋ ਵਰਬ ਹੈ, ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਮਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਅਗਰ ਮਿਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, whom ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। राइट, सारा ना ठीक सी सेंटेंस है, ग्रेट। नेक्स्ट, इट वॉज द सेम टॉल इन्फेंट्री ऑफिसर। नाउ पहला मेरा वर्ब किया वॉज, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ इट। इट वॉज द सेम टॉल इन्फेंट्री ऑफिसर हु वी हैड सीन। अगला वर्ब किया हैड सीन, ਉਹਦੇ ਲਈ सब्जेक्ट ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ वी। वी हैड सीन डबल टाइमिंग it into the building a few minutes before। नाउ दो वर्ब है, दोनों सब्जेक्ट दिते हुए है, मैनू सब्जेक्ट नहीं चाहिए, सब्जेक्ट मिसिंग नहीं है। और अगर सब्जेक्ट मिसिंग नहीं है तो आप हूँ नहीं लिखांगे, आप लिखांगे होम। आप वर्ब देख लिया एंड वर्ब के अकॉर्डिंगली आप सेंटेंस जोड़ा है सोल्व करी जाते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, द अवार्ड इज गिवन। नाउ इज गिवन की दिता है द अवार्ड, सब्जेक्ट की हो गया द अवार्ड। The award is given to the performer whom they believe। believe मेरा verb है, ਉਹਦੇ ਲਈ subject ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ they ਹੋ ਗਿਆ। they believe showed ਮੇਰਾ verb है second form verb, ਇਹਦੇ ਲਈ subject ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ believe ਦੇ ਲਈ subject देता they। is given ਕੀ given ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ the award, ਇਹਦੇ ਲਈ subject ਹੋ ਗਿਆ the award। now ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ verb ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ subject ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ठीक है ना। तीसरा जो वर्ब हैगा ਉਹਦੇ ਲਈ सब्जेक्ट नहीं हैगा, इसलिए सब्जेक्ट मिसिंग है। सब्जेक्ट मिसिंग होवे तो की लिखते हैं आप हु लिखते हैं। समझ आया सारा नु प्लीज़, ये सेंटेंस बहुत जरूरी सेंटेंस है, आना चाहिए। आप सब तो पहला सेंटेंस दे विच वर्ब्स देखते हैं एंड वर्ब्स ਨੂੰ देख के ही सारा आप ही चीज़ डिस्कस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वो देखते रहा करो, भी इसी चल रही है ना, हाँ ठीक है, समझ आया हूँ। ओके फाइन, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आप नंबर 3। नंबर 3 इज व्हेन वी अराइव्ड एट द हाउस, जदों असीं घर पहुंचे सी, सुधा हैड चेंज सो मच। सुधा जिहड़ी सी हैड चेंज सो मच, इन्नी ज़्यादा बदल गई सी सुधा दैट आई वॉज नॉट श्योर। वॉज मेरा वर्ब है, सब्जेक्ट आई एम। इट वॉज हर, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਾਂ ਇਟ ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਟ ਵਾਸ ਹਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਸ਼ੀ ਆਊਗਾ। इट वॉज हर नहीं आऊगा, इट वॉज शी। अगर मैं पंजाबी दसा इले सेंटेंस दी तो ये दसन की कोशिश करा भी शी ही क्यों आऊगा, इसका कारण ये है भी इसका मतलब है भी जदों असी घर पहुंचे सी भी सुधा इन्नी बदल गई सी कि मैनू यकीन ही नहीं होया कि यह ओह है, भी की यह सुधा ही है ना। कि अभी वोस की हुंदा है, वोस मतलब की हुंदा है, वोस मतलब हुंदा है होना। बी दी फॉर्म है इस एम आर दी, वी आर हेयर, असी इत्थे हाँ, राइट। आर आर हो गया, इज एम आर, वोस वर, इन्हां दा मतलब की हुंदा है होना। भी मैनू यकीन नहीं होया कि यह ओ सी, मतलब कि वो सुधा ही सी। सो इट वॉज शी लिखांगे सिंपलीफाइड मैथड नाल, बड़ा ईजी वे नाल तुहानूं मैं दस्सिया सी भी सिंपल पॉइंट है भी इट इज़ इट वॉज तो बाद अगर कोई लगूगा प्रोनाउन की लगूगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना आपने, ठीक है, माइंड से रखना है। नेक्स्ट सॉरी, द पर्सनस,
refer to in the news item ਜੋ ਲੋਕੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਈਟਮ ਵਰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾउ ਸੀ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਿਫਰਡ ਰਿਫਰਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦ ਪਰਸਨਸ ਓਕੇ दूसरा मेरा वर्ब की है वर हुण वर वास्ते वर्ब तो दिता मैनू सबजैक्ट चाहिए अस नहीं लिखांगे की लिखांगे वी वर अस वर नहीं हुंदा है वी वर हुंदा है राइट सिमिलर टू द अर्लीयर कॉन्सैप्ट जिहड़ा अर्लीयर कॉन्सैप्ट आपने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 4 च उस तरह का ही सेंटेंस ही है राइट नाउ नेक्स्ट ये आप आई थिंक आपने कर ही लिया सी कल है ना नंबर 6 बिटवीन यू एंड आई नहीं आऊगा बिटवीन प्रैपोजिशन दी हो ऑफकोर्स नाल फिर बिटवीन यू एंड मी आऊगा ही इज़ कैपेबल बिकॉज एक वर्ब दिता होया वर्ब आपां नूं इत्थे एक दिता होया राइट उहदे लई सबजैक्ट दिता होया हैगा होर कोई वर्ब ही नहीं हैगा राइट नहीं टू यू इफ प्रोपोक ठीक है होर कोई वर्ब नहीं हैगा जिहदे वास्ते आपां सबजैक्ट यूज़ करिए इसलिए आपां आई यूज़ नहीं करांगे आपां आई दी जगह मी यूज़ करांगे राइट कल आपने इस तरह के सेंटेंस डिस्कस किया सी फिर भी समझ ना आया मैंने पूछ लेना सबजैक्ट की है वन जो वन आता ना माइंड में ही आता अच्छा वन तो वह वंस आता है ही सर लेकिन दिता होंगे पेपर सो वन शुड सबजैक्ट इज वन शुड मेक ओह बस यही गलती आ गई कि आना चाहिए वन शुड मेक वंस बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू अचीव सक्सेस इन दिस मेडिकल फर्म समझ आई गया सी ना सेंटेंस आंदे सी सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत ईजी सी नाउ एवरीबडी एवरीवन एवरीबडी समवन समबडी नो वन नोबडी सारे सिंगुलर होंगे राइट सो एवरीबडी सिंगुलर एवरीबडी वॉज इन द पार्टी एंड इंजॉइंग दैमसेल्व्स मेरा सबजैक्ट की है एवरीबडी जो कि होंगे सिंगुलर लेकिन मैं इत्थे की यूज़ किया हुआ है दैमसेल्व्स जो कि मैं यूज़ करूँगा अगर सबजैक्ट मेरा प्लूरल होवे दे हुंदा दैमसेल्व्स लिखदा एवरीबडी सिंगुलर है तो मैं की लिखूँगा इत्थे हिमसेल्फ या हरसेल्फ हिमसेल्फ लिखना या हरसेल्फ समझ आया यस और नो नेहा ओके नेक्स्ट हु डिड द कमेटी रेकमेंड मेरा वर्ब की हो गया रेकमेंड सिफारिश करना रेकमेंड कौन करता है किहने किया सी द कमेटी ने सबजैक्ट की हो गया मेरा द कमेटी हु डिड द कमेटी रेकमेंड टू चेयर द इंडस्ट्रीयल प्रोजेक्ट हुण एक मेरा मेन वर्ब है उहदे लई मैनूं सबजैक्ट दिता होया द कमेटी राइट मैनूं होर कोई सबजैक्ट चाहिदा नहीं है सबजैक्ट तो मिसिंग ही नहीं हैगा सबजैक्ट मिसिंग ना होवे तो आपां की लिखदे हैं हुम लिखते हैं राइट समझ आ रहे हैं नेक्स्ट द टू की गल हो रही है द टू टैक्सी ड्राइवर अजब लाल एंड हेम अपीयर्ड हुण अपीयर्ड मेरा वर्ब है हुण अपीयर्ड कौन एक क्रिया किन्ने किन्ने की सी एक तो अजब लाल ने की सी ते एक हिम ने लेकिन हिम तक कोई क्रिया कर ही नहीं सकता वो तो ऑब्जेक्ट होंदा है मैं हिम की जगह की लिखना पऊगा ही क्योंकि वही क्रिया कर सकता वही एज अ सबजैक्ट यूज हो सकता है सेंटेंस विच तो लिखेंगे अजब लाल एंड ही अपीयर्ड इन द ट्रैफिक कोर्ट यस्टरडे मॉर्निंग राइट समझ आया यस और नो ही ऑलवेज सेज दैट हिज फादर is an officer and mine father reason दस सकते कोई है ना हाँ noun father is a noun right name of a relation या एक ही है possessive ये possessive adjective है possessive pronoun है possessive pronoun दे नाल noun नहीं लग्या हुंदा पोजैसिव एडजैक्टिव दे नाल नाउन लगूगा एडजैक्टिव मतलब विशेषण जो विशेषता दसता है नाउन दी पड़नाम दी इसलिए पोजैसिव एडजैक्टिव लगूगा क्योंकि नाउन लग्या हुआ है माई फादर आऊगा माइन फादर नहीं आऊगा राइट ये रीजन से ओके फाइन नेक्स्ट नंबर 12 इज दैट द मैन
whose house was broken into by burglars last month, राइट कि ये ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ broken into ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ by burglars ਚੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਨਾ ਇੱਥੇ who ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਲਗਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ whose house was broken, ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਈਟ broken into ਮਤਲਬ ਸੇਂਧ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। तो whose house ਆਊਗਾ ਨਾ ਕਿ whose house। अगर ਆਪਾਂ pronoun ਦੇ ਨਾਲ see I want to discuss something very important, I don't know if I discussed it earlier with you or not। now देखो pronoun ਦੇ ਨਾਲ अगर ਆਪਾਂ apostrophe लगाने हैं पूरे इंग्लिश लैंग्वेज विच अगर ਆਪਾਂ apostrophe लगाने हैं apostrophe ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ apostrophe s लगाने हैं ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਊਨਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਰਾਮਸ ਬੁੱਕ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦ ਬੁੱਕ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਰਾਮ, ਰਾਈਟ ਦ ਬੁੱਕ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਰਾਮ, ਵੀ ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। another sentence is Ram's here, now Ram's here means Ram is here, apostrophe ਦਾ ਮਤਲਬ is ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अगर मैं लिख रहे हैं राम्स डन इट, नाउ डन मेरा किया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सो एपोस्ट्रोफी एस का मतलब इतना होता है हैज़, सो राम हैज़ डन इट। सो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज दे विच एपोस्ट्रोफी एस दे 3 रीजनस होंगे हैं। वन हक दसन दे लई, जदों हक दसना है जिहड़े बंदे दा हक है उहदे बंदे दे नाम दे नाल एपोस्ट्रोफी एस लगानी, जिस चीज़ से हक है वो चीज़ लिख देनी है, फाइन। दूसरा ਇਹਦਾ एपोस्ट्रोफी एस का मतलब हक तो इलावा इस भी ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। तीसरा मतलब अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है ਇਹਦਾ मतलब हैज़ भी ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। नाउन्स विच एपोस्ट्रोफी एस ਦੇ 3 डिफरेंट रीजनस है। प्रोनाउंस विच नाउ अगर मैं गल करा प्रोनाउंस दी, प्रोनाउंस ਦੇ ਨਾਲ अगर ਆਪਾਂ ਨੇ एपोस्ट्रोफी एस लिखिया ना, प्रोनाउन नाल किसी भी प्रोनाउन नाल एपोस्ट्रोफी एस ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है या तो इज या हैज़। जिवें he is here means he is here, when I say he's done it, now he's done it mean he has done it, थर्ड फॉर्म वर्ब लिखी हुई है। सो प्रोनाउन दे नाल अगर एपोस्ट्रोफी लगी है तो ਉਹਦੇ 2 मतलब ही है, या तो is या has, राइट। कारण ये है नाउन विच हक दसन दे लई आपां तीजा रीजन लै लैने एपोस्ट्रोफी एस नूं यूज कर लैने हैं भी हक दसन दे लई, नाम दा हक दसना किसी वस्तु उपर, लेकिन प्रोनाउन नाल जरूरत नहीं है हक दसन लई। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन कोले आपदे शब्द है, प्रोनाउन कोले आपदे शब्द हक दसन दे लई माइन, राइट, हर्स, हिज, राइट, आवर्स, साडा एटसैट्रा। प्रोनाउन कोले हक दसन दे लई आपदे शब्द हैगे है, इसलिए हक दसन दे लई प्रोनाउन नूं एपोस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं है। तो अगर ਆਪਾਂ ਨੇ हू जो कि एक प्रोनाउन ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ एपोस्ट्रोफी एस लिखिया है, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਵੀ ਹੱਕ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ प्रोनाउन ਦੇ ਨਾਲ एपोस्ट्रोफी एस नहीं ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਰਾਈਟ। क्योंकि हू जो कि प्रोनाउन है ਇਹਦੇ ਨਾਲ एपोस्ट्रोफी एस लगाती तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਊਗਾ इज ਹੋਊਗਾ या हैज़ ਹੋਊਗਾ। जद कि गल हो रही है ਉਹਦੇ हक दसन दी, ਉਹਦਾ घर, उसका घर या जिस दा घर ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ चोरी हुई है, जिस दा हक की गल हो रही है तो whose house आऊगा। समझ आया? यस और नो? मैं टेस्ट भी लूँगा, मैं टेस्ट भी लूँगा प्रोनाउंस का, एक एक क्वेश्चन कराइए ना, मैं टेस्ट भी लूँगा, राइट। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए है, राइट। थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ग्रुप च मैसेज करो भी मैंने एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, मैंने इंग्लिश पल्ले नहीं पैंदी जी, मैंने इंग्लिश पल्ले नहीं पैंदी, मैंने एक्स्ट्रा टाइम दे दो जी। सवेरे जी मैं कोई दिक्कत नहीं है, सवेरे जल्दी आ जाऊँगा, 8:30 आ जाऊँगा, मैंने करा दो, मैं कराऊँगा। कोई बुक चाहिए सर मैंने तो जी एक बुक देखे जी, मैं वो दे दो जी बुक, वो बाली वधिया लगती है जी, मैंने फिर आ जाऊगी इंग्लिश ही, वो भी दे दूँगा। कहने का मतलब ये है कोई भी चीज़ चाहिए है कह लो, लेकिन आना चाहिए। पेपर च यही चीज़ां आनियां यार,
राइट एंड आई एम श्योर तुसी भी पूरी एफर्ट्स लगाओगे हिम्मत मरदा मददे खुदा राइट चलो फिर आप ये गल तो इस लाइन तो इन्ना ज़्यादा इंस्पायर होकर आप अगला सेंटेंस करिए हैविंग सेड दिस एक कैन तो बाद एक कोमा लिखना से उन्होंने लेट तो बाद की लिखा मी हैसन मतलब तेजी करना जल्दी करना वर्ब हैसन टू ऐड दैट वी इत्थे वी लिखे वी तो आप उदों ही लिखांगे ना अगर लेट मी ना होवे की होवे लेट अस राइट be let us hasten to say that we are not against social mixing ਅਸੀਂ social mixing ਦੇ against नहीं ਆ so ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ word were we ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ right are ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ that mean ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ word change ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਰ ਆਪਾਂ me ਨੂੰ me ਰਹਿਣ ਦੋ we ਨੂੰ change ਕਰਕੇ I ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ लेकिन फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ word change ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ are ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ me are ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ am ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ लेकिन एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ नॉर्मली ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਅਸ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਓਕੇ I and you are not supposed to attend the function at night ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਰਾ ਤੇ नॉर्मल सेंटेंस है जनरल सेंटेंस है कोई मिस्टेक नहीं है कोई क्राइम नहीं है कुछ इस तरह का तो की आऊगा पहला आई एंड यू नहीं आऊगा की आऊगा यू एंड आई रूल याद होना चाहिए रूल की सी 2 3 1 एंड 1 2 3 नेक्स्ट इफ द टीचर सब्जेक्ट किया गया इतने मेरा द टीचर राइट इफ द टीचर इज यार किवें हुंदा है चलो ठीक है if the teacher is good right is मेरा verb है subject मेरा किया गया the teacher singular या plural singular right if the teacher is good the students will respond positively लिखना चाहिए चलो will respond positive to them अगर टीचर एक अच्छा है तो स्टूडेंट्स भी उन्होंने रिस्पॉन्ड करेंगे पॉजिटिव ही नाउ इत्थे में की लिखा है रिस्पॉन्ड करेंगे पॉजिटिव कैनू रिस्पॉन्ड करेंगे पॉजिटिव टू दैम हुण टीचर मेरा प्लूरल है मैं दैम लिखा है गलती फिर किस चीज़ है दैम की जगह की आऊगा हिम या हर आऊगा ए गलती सी अंडरस्टूड सेंटेंस है the moon has his own surface इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया वर्ल्ड दी फर्स्ट कंट्री बनाए साउथ पोल तो जान वाला राइट सेंटेंसेस पढ़े हुए इस न्यूज़पेपर विच जिहदे च द मून द चंद्रयान एंड सो ऑन एक वन ऑफ द आर्टिकल्स दैट आई रेड एक न्यूज़पेपर से जो आर्टिकल पढ़ा से वो सेंटेंस वाज देयर इन माई माइंड तो वो मैं सेंटेंस थोड़े सामने लिखी है ये की गलती है सब्जेक्ट की है मेरा द मून लेकिन मैं पोजेसिव एडजेक्टिव की लिखा थे हेज मैं कदों लिखूँगा अगर कोई बंदे की गल होंगी राम लिखा होंदा राइट मोदी लिखा होंदा बाइडन लिखा होंदा ट्रूडो लिखा होंदा राइट हुण इत्थे आपां दा मून जो कि नॉन लिविंग थिंग आपां इत्थे हिज दी जगह की लिखांगे इट्स द मून हैज़ इट्स ऑन सरफेस चंद्रमा की अपनी आप भी सरफेस हैगी अपनी सतह हैगी है राइट उस तरह का सेंटेंस है इसी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे किनू टीचर नू गल हो रही है टीचर की है सिंगुलर है तो मैं हिम या हर लिखूंगा राइट नेक्स्ट आवर लेसन्स सब्जेक्ट किया मेरा सब्जेक्ट किया बोलो सिंगुलर के प्लूरल प्लूरल है मैडम बोल नहीं रहे तुसी बोला पक्का ठीक है आवाज़ थोड़ी उच्ची आवे सब तो ज़्यादा हूँ आवर लैसन्स आर चैकड साढ़े लैसन्स जोड़े है लैसन्स मतलब प्लूरल चैक किए जाते हैं फॉर एरर्स गलतियां लिए भी कोई गलती तो नहीं है थरली बिफोर इट गो फॉर फाइनल प्रिंटिंग बिफोर इट इन्हों प्रिंटिंग तो फाइनल प्रिंटिंग भेजन तो पहला साढ़े लैसन्स नूं चंगी तरह चैक किया जाता है ताकि इनू भेजन तो पहला हुण मैं इट यूज़ किया कि
ਆਵਰ ਲੈਸਨਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਆਵਰ ਲੈਸਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਜਾਂ ਪਲੂਰਲ? ਪਲੂਰਲ। तो फिर मैं इट क्यों लिखूंगा? इट की जगह की लिखूंगा मैं? दे। राइट, जिस तरह का सब्जेक्ट उसी तरह का आप अगे फिर सब्जेक्ट यूज करांगे। नाउ नेक्स्ट, बॉर्डर्स। बॉर्डर्स के सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल, राइट। बॉर्डर्स मस्ट मेक हिज ओन अरेंजमेंट फॉर मील ड्यूरिंग शॉर्ट वेकेशंस। बॉर्डर्स मतलब की है, ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਬੋਰਡਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਈਟ, ਲੜ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈਕ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਘਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੈਸ 'ਚ ਕੈਂਟੀਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾउ ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਿ ਪਲੂਰਲ? ਪਲੂਰਲ। ਮਸਟ ਮੇਕ ਹਿਜ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਹਿਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਅਗਰ ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਰਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਿਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ मैं? देयर, देयर ओन अरेंजमेंट। अंडरस्टूड, समझ आया? बस इन्हें इत्थे तक सेंटेंस ही। अगला सेंटेंस तुसी बोल दो मैनू। 18 सेंटेंस की है, नंबर 18 बुक देना यार। लो, नंबर 18 इज ये क्यों नहीं लग रहे हो रहे है? आई डोंट नो क्या हुआ। हाँ, कलर करके नहीं हुआ है ना, हुन हो जाएगा। हुन हो जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो किसी और तो भी पूछ सकते हैं ना काम वास्ते फिर अगर काम ना हो तो। दे टू सिट, अरे वेल छड्डो कोई गल नहीं है। फॉर आवर्स लुकिंग इनटू one another's eyes। देख दो कि तेरी अख सीधी है कि मेरी अख सीधी है, वो भी इधर ही आना, वो इधर देखना, इसलिए चलो फाइन, जोक अपार्ट। सो दे टू, गल हो रही है, सब्जेक्ट इज टू एंड वन अनदर। सेंटेंस से गलती की है, वन अनदर नहीं आऊगा, की आऊगा each others eyes। तेरी आँखों के सिवा, बहुत सारे गाने हैं ना आँखें अंदर, गाने तो सर कितने मर्जी है, बहुत हम सुना देंगे, but the point is pronounce। now next is either। now बहुत अच्छा सेंटेंस है नंबर 19। if either, either की ਹੁੰਦਾ है दोनों विचों एक, सब्जेक्ट की ਹੁੰਦਾ है सिंगुलर, राइट। if either of the boys phones, अगर दोनों विचों एक क्या ना भी फोन करे तो tell them नहीं आऊगा, बिकॉज सब्जेक्ट मेरा की है either। दोनों विचों एक भी बॉय फोन करे तो उसनू कहना, them नहीं आऊगा, की आऊगा tell him, उसनू कहना कि I will be in this evening। इनकम्प्लीट या लग रहा सेंटेंस, बाकी ठीक है। नंबर 20, रामनाथ एंड राजनाथ सी ईच अदर, क्या होगा? ईच अदर। कितना बदल गया इंसान। फाइन, सो ईच अदर समझ आया सेंटेंस, राइट। सो एक्सरसाइज 1 अपने 20 sentences we have discussed, कर लिया डिस्कस। नाउ the ball is in your court।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2 3 4 5 ਰਾਈਟ 4 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4 ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤਿੰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹੋਗੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੇ ਵਾਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4 ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਫਾਈਨ 4 ਦੀ 4 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣਗੇ ਰਾਈਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ आज मंगलवार है फिर मंदिर जाओगे आज बदाना मिलेगा बदाना यार ये स्लाइड मैंने आगे हूँ क्यों कितने गई हो पता नहीं की हो गया है अरे बस ये गल है एडी भी गल नहीं सी जिडी मैं ओके ना अपन ने कितों तक कर ली सी हाँ जी BI डिबेट ना आज द फर्स्ट वकैब द वर्ड है बाइट बाइट हुंदा है कटना राइट जो डॉग्स है डॉग्स बाइट बाइट बिट बीटन खाने वास्ते भी होंगे एक बटका भर लेना राइट भी बर्गर खा रहे हैं तो 1 बाइट ले ली सो बाइट बिट बीटन नैक्सट वर्ड इज ब्लो ब्लो की होंगे वहना ना देखो 3 वर्ड्स होंगे ब्लो फ्लो एंड ब्लो फ्लो एंड फ्लाई ना ना बलीड देखो तिना का मतलब बहना होंगे ब्लो का मतलब की होंगे एयर हवा का बहना प्लस यदा मतलब प्रैस करना भी होंगे ब्लो द हॉर्न फ्लो का मतलब होंगे पानी का बहना बलीड का मतलब होंगे ब्लड खून का बहना सो मतलब तिना का होंगे बहना लेकिन तिना अलग अलग चीज़ का बहना होंगे ब्लो होंगे हवा का बहना फ्लो होंगे पानी का बहना एंड ब्लीड होंगे ब्लड का बहना ओके नंबर 3 है अपना चूज होंगे चुनना चुन के मारो धर्मिंदर राइट चूज चॉस चोजन नंबर 4 इज डू होंगे कुछ करिए चक दे इंडिया राइट कुछ करना कुछ परफॉर्म करना एंड सो ऑन नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली डू इन दा मतलब की होंगे डू नाल अगर प्रैपोजिशन इन लग्या होवे दैट मीन्स टू किल मार देना मर्डर करना टू किल कला डू मतलब होंगे कुछ करना डू योर वर्क डू योर होमवर्क डू योर असाइनमेंट डू द प्रोजेक्ट राइट लेकिन अगर डू दे नाल इन लग्या होवे ओदा मतलब होंगे टू किल डू इन मतलब टू किल नेक्स्ट इज नंबर 5 ड्रो होंगे कोई चीज़ बनाना पिक्चर ड्रो करनी कोई कुछ बनाना कुछ वाना वहोना ड्रॉ अ पिक्चर ड्रॉ अ पिक्चर एक पिक्चर बनाओ नेक्स्ट इज ड्रिंक मतलब की होंगे थोड़े कि ड्रिंक करते ड्रिंक नहीं मैं कुछ क्या ही नहीं मैं तो पीछे थोड़े से कि ड्रिंक करते हैं सर कदे कदे तो नहीं थानू नहीं पूछे चोर की दाढ़ी में तिनका मैं तो उधर हाथ कितने सुपर
ਐਵੇਂ ਹੀ। ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਆ ਰਿਕਾर्डिंग मैं बंद करा दूंगा, ये वाला हिस्सा कटिंग हो चुकी कोई गल नहीं। जसपाल कदे कदे समटाइम्स ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਜਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਵਰ ਟਰਾਈਡ, ਨੈਵਰ ਐਵਰ। अरे ड्रिंक तो आप सारे ही करते हैं। ड्रिंक मतलब होंगे है कि पीना, राइट। ड्रिंक मतलब होंगे है कि पीना। हुन ड्रिंक वाटर, ड्रिंक अ कप ऑफ टी, ड्रिंक सम कॉफ़ी, ड्रिंक सम मिल्क, दैट्स ओके, वी डू ड्रिंक। अब सारे ड्रिंक ही करते हैं। जिहड़ी आपां एल्कोहल वास्ते पुछदे हैं ना भी शराब तो नहीं पींदे, उस लई वर्ड होंदा है बूज। बूज वर्ड होंदा है टू ड्रिंक or to have alcohol, to have alcohol। So right, you go to इत्थे मैं जिवें कि पार्टी च गया, इत्थे फ्राइडे नूं ऑफिसर पार्टीज, सो कैंटोनमेंट च ऑफिसर पार्टी जिवें फ्राइडे इन्हां ते हुंदी है नाइट पार्टी। सो आई मैट विद सम कर्नल्स, ब्रिगेडियर वर देयर, ते उन्होंने मैंने क्वेश्चन की पूछा भी कपिल डू यू बूज? I said, no, I don't. But yes, for the company's sake, I'll have a cup of Coca-Cola. I'll have a glass of Coca-Cola. Big company वास्ते मैं Coca-Cola पी लूँगा, right? Cold drink. But I do not booze. Booze मतलब होता है कि शराब पीने वास्ते। अपन जनरली सोचते हैं भी ड्रिंक मतलब यार होएगा ना बंदा खांदा पींदा तो नहीं, वो यार बंदा खांदा भी, रोटी भी खांदा है, पानी भी पींदा है, दुध भी पींदा है। लेकिन आपां की सोचते हैं भी बंदा खांदा पींदा नहीं, भी सोच अपनी उधर ही आती है भी खाना मतलब नॉन वेज हो गया, पीना मतलब शराब हो गया, राइट। चलो फाइन। सो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक होता है कि पीना। नेक्स्ट वर्ड इज नंबर 7 इज की है ड्राइव। ड्राइव होंदा है कि कोई कार चलानी, ठीक है। एक मतलब होंदा है कि मोटिवेट, इनू प्रेरित करना, मोटिवेट। आप कहने दैट मूवी ड्राइव्स मी क्रेजी, दैट मूवी ड्राइव्स मी, राइट। मोटिवेट करना, या ऑफ कोर्स टू रन अ कार, टू रन अ व्हीकल, चलाना। ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन। नेक्स्ट इज ईट होंदा है खाना, ईट, एट, ईटन। देखो अपन ना खान पीन के लिए वर्ड्स आप यूज़ करते हैं, ईट यूज़ कर लेने हैं, टेक यूज़ कर लेने हैं, ड्रिंक यूज़ कर लेने अगर पीन की गल करिए। लेकिन जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है, स्टैंडर्ड इंग्लिश विच वो इन्हां विच कोई वर्ड्स यूज़ नहीं करते, और यूज़ करते हैज़ हैव, जिमें हैज़ या हैव। जिमें आप कहने भी 9 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर लेना है, जनरली कहते भी आई टेक ब्रेकफास्ट एट 9 AM, या आई ईट ब्रेकफास्ट एट 9 AM। लेकिन जो स्टैंडर्ड इंग्लिश हैगी है वो बोलते हैं आई हैव ब्रेकफास्ट एट 9 AM। खान पीन के लिए, राइट, पीन उन्होंने लिए आप वर्ड ईट, ड्रिंक यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली यूज़ इंग्लिश की हो जाते हैं वर्ड्स हैज़ या हैव, सब्जेक्ट अनुसार। नंबर 9 इज फ्लाई। फ्लाई की होंदा है उड़ना। फ्लाई सिद्धू मूसेवाला का गाना है ना एक, फ्लाई कर दे उच्चिया ने गल्लां। ओके फाइन। फ्लाई। फॉल रह गया सी। फॉल हुंदा है गिरना, राइट। फॉल, फैल, फॉलन। सो आज ते अपने 10 वर्ड्स हो चुके हैं। लीजिए सीरत, थैंक यू। बाइट हुंदा है कटना, बाइट, बिट, बिटन। ब्लो, फ्लो, ब्लीड तिना मतलब बहना, लेकिन ब्लो होंदा है एयर दा बहना, फ्लो होंदा है पानी दा बहना, ब्लीड होंदा है ब्लड दा बहना। नेक्स्ट इज चूज मतलब चुनना। डू होंदा है कुछ करना, लेकिन डू इन एज अ फ्रेजल वर्ब मीन्स टू किल। ड्रॉ होंदा है कुछ वोना। ड्रिंक होंदा है पीना, बट अगर आप गल कर रहे हैं कि अल्कोहल पीन दी, शराब पीन दी, उसलिए वर्ड है बूज। ड्राइव होंदा कुछ व्हीकल कोई चलाना या मोटिवेट करना। ईट होंदा है खाना। फ्लाई होंदा है उड़ना। फॉल होंदा है गिरना। सो अपनी अज दी क्लास इत्थों तक ही है।
ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਪ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬਾਏ ਬਾਏ